Hello. Hi, everyone. How are you all? Hope all of you are doing very, very fine, right? So, students, to support you in your upcoming exam, today I will discuss latest financial reporting examiner report September-December 2025. We will see what are the points examiner want us to understand, what are the mistakes examiner want we don't repeat. तो सेम गलतियों को बार बार मत करो. इफ गलतियां करनी है तो कुछ नई गलतियां करो, पुराने पे बार बार नहीं. So on that note, let's start our today's discussion of financial reporting September December 2025 examiner report. So students, in examiner report, you will have all three sections: section A, section B, and section C. In section A, examiner gives us 4 questions which student find more difficult as compared to all other questions. In section B, we will get one question, one case study style question, which most of the student face difficulty in understanding or applying the concept. And then section C, we have 2 questions completely in relation to ratio and consolidation. So let's start with our section A first. So question 1, always read from requirement, and this question 1 is from consolidation area. So this question is asking, what were the consolidated retained earnings presented on Globe Group consolidated financial statement as of 31st May in accordance with IFRS 10 consolidated financial statement? So students, what we have to calculate here, in Crux, we have to calculate step 5. What was step 5? Consolidated retained earning. You remember step 5? What we do in step 5 here? We calculate consolidated retained earning. And how do we calculate consolidated retained earning? We take parents' retained earning, right? Share in subsidiary, share in post-acquisition profit of subsidiary minus any unrealized profit, etc. And then we have our consolidated retained earning. These were some major adjustment we do in calculating step 5. So we have revised the same. Now let's see how this will be applied in this question. Obviously, the things will not be so simple that you can directly apply. There will be certain nuances, certain issues created by the examiner, and that's the beauty of the question. If question is not challenging, it is not interested, it is not interesting, it is not worth doing. So let's read the question. Global company acquired 55% ordinary equity share of Stick company on 1st June 2018. So global company acquired how much shares, my friend? 55% retained earning. And when the retain on date of acquisition, retained earning is 5 lakh. Okay. On that date, Stick company sold item of machinery for proceed of 5 lakh 60,000. Now see, global company acquired Stick company, and so global company is a parent company and Stick company is subsidiary. So parent acquired subsidiary and percentage of holding is 55. Okay. And retained earning on that date is 5 lakh. Later on, there is an upstream transaction. What is an upstream transaction? Subsidiary is selling non-current asset to parent. So understand this here. Subsidiary, for example, Abhishek ji. Let's take an example of Abhishek ji and parent holding. Parent is Amitabh ji. So Abhishek ji is selling machine to holding parent. So it's an intra-group transaction. There will be unrealized profit, and they sold at 5 lakh 60,000. So they sold at 5 lakh 60,000. Okay. And the total carrying amount of machine in general ledger was 448. So carrying amount is already given to us. 4 lakh 48,000 is the carrying amount. So this is
5,60,000 minus 48,000 112 000. This is unrealized profit, all of you. URP, fake profit earned by subsidiary. So we have to remove from subsidiaries post acquisition profit, right? Now let's read further. The total carrying amount of machinery 458. The remaining useful life is 10 years. So obviously, why they have given you this remaining useful life? In this type of question, whenever we sell purchase non-current asset between the group, it's an intra-group transaction. It's need to be removed entirely from the consolidation, because from consolidation perspective, this transaction do not exist now. How can you sell to yourself? Subsidiary and holding is no more two separate entities. They are one entity, so they can sell to yourself. Can you sell to yourself? Obviously not. You cannot record it. First you sell to yourself, then you record it. Two crimes together you have performed. So we have to rectify all those things. Now here notice, first mistake is this 1,112,000 is a fake profit earned by subsidiary, that need to be removed. Okay. Second mistake is holding company must have recorded this machinery at 560. Holding company must have recorded this machinery at 560. So this machinery is overvalued. Now they must be calculating depreciation on 560. So their depreciation is also overcharged. They have charged extra depreciation. So the depreciation on this amount, 1,02,000, is excessive. It's wrong. Divide by 10. So depreciation per annum is 11,200. This depreciation is also need to be removed or added back in the profit of parent. As parent has wrongly charged excessive depreciation, my friend, they only need to charge depreciation on the carrying value, because for the group this asset is still at 448,000. Due to this intra-group transaction, holding company has recorded this asset at 560. That the revaluation, the recording at the value of 560 is already wrong, and then you are charging depreciation, which is further wrong. So all these adjustment you have to do, and you will reach your answer. So how will you get your answer? Have they given you opening retain earning at 31st May? The closing retain earning is retain earning were 1.6 and 740 for global and stake company they have given to you. So there is no issue here. You can simply write parents retain earning. It's 1.66 million. 000. Okay. Now add back wrong depreciation. How much amount of wrong depreciation? 11,200. Then we have to calculate a post acquisition profit. So for calculating post acquisition profit, they have given us retained earnings 740 closing and 5 lakh opening. So how much is the retained earning? 740 and 5 lakh. So 2,40,000 is the post acquisition profit. In this, the fake profit, we have to remove this 112,000. So 2,40,000 minus 112,000, 1,28,000, and don't forget, this is not 100% ours. We will only have 55% share in subsidiaries profit. So 1,28,000. So I can understand why student must have struggled in this question, because there are a lot of nuances to incorporate here. You see, they are testing fully this topic in section A instead of section B and C, where it is mainly tested. They are testing conceptually each your steps in section A, which make
That's more difficult. A student are more used to section C questions. So 1741600. Understood. So I have done calculation in detail. My main purpose of dealing with examiner report is to make you conceptually clear in relation to section A or B, because section C is already available on practice platform. It obviously need a lot ample amount of practice. It cannot be cracked in one or two questions. You have to solve number of questions. But here, the conceptual, for understanding conceptual, for getting conceptual clarity, each questions matter. Understanding of every question can bring certain new points to your repertoire, to your knowledge. So understand here what they have done. They have framed a question of calculating consolidated retained earning, including the adjustment of unrealized profit, which is specifically in relation to non-current asset. And I have seen most of the students leave that adjustment. And here, this adjustment, dealing with this adjustment was also very simple. How to deal with, with this adjustment? You sold your subsidiary sold to holding. So subsidiary generate the fake profit. How much is the fake profit? 112 that we need to remove from subsidiary post acquisition profit. That what I have removed. The remaining profit 128 will be given to parent. And the parent, the holding, जिन्होंने गलत depreciation लगा रखा है, they have charged overly. उनका भी तो depreciation ज्यादा लग गया ना भाई. मशीन 5,60,000 का शो किया है, तो उसको भी ठीक करना पड़ेगा. तो उसको ऐड बैक कर दिया. देयर प्रॉफिट मस्ट हैव रिड्यूस. मेरा आंसर आ गया. So if you go structurally, the solution is very simple. But if you miss any single point, you will never reach to right answer. यही तो problem है इन questions का. You need to work very structurally in these questions. So this is correct answer is D. So this is where we should focus on. Where did candidates go wrong? Most candidates answer this question incorrectly. Incorrectly. Many candidates did not answer it at all. कहता करा ही नहीं answer. A similar number of candidates selected B ignored the depreciation adjustment or applied the group share 50 to both 128 and 11,200. Very few candidates selected A, parent as seller. So it's quite um, difficult to get right. गलतियां हो रही हैं बच्चों से. Question 2. Check out this one. यहाँ पे क्या दिक्कत है? So question 2 is again the problematic question is again from consolidation. Question 1 from consolidation. Oh, that this much of testing of consolidation in section A. Again, question 2 is from consolidation area. What is the carrying amount of investment associate in Gamma Group consolidated statement is 37 in accordance with investment in associate. So here we have to calculate carrying value of investment in associate. So, you know, in consolidated, they are not asking on a single statement, single entity. They're asking on a consolidated statement. And, you know, in consolidated statement, how do you calculate value of associates, investment in associates, carrying value of associates is using equity method, right? We all remember this. And let me first revise the concept. Okay, tell me, how do we calculate carrying value in equity method? You take investment amount, right, sir? We take investment amount. Then what you do? You add your share in associate profit. Whatever the profit associate earns, you assume you take it as your share. You remove unrealized profit. You remove any dividend received, impact of unrealized profits, impairments. These basic adjustments you do, and to reach out your answer, right? So this is the remembrance of concept. ये तो बात हो गई concept को याद करने की, उनको याद करने की. Now, if you remember, it does not mean you will able to apply, because at the time of application, you also have to crack the language. Gamma company acquired 30% of Trinity company for 2007 on 1st Jan 2015. Okay.
So here they have invested 207 million, right? Okay. When June 2020 company paid dividend of 22 million, so they have paid dividend, whether pre-acquisition, post-acquisition, we have to remove the dividend. The dividend need to be removed. You will minus the dividend. Any other adjustment? Profit for the year ended is 62 million. So this question was quite simple. Why this question was problematic area for student? Okay, we will read examiner insight on this. 18.6. So 207, 80% of 62. Okay, but here let's check out once again. Hope we are not doing any mistake here. 80% of 62. Profit for the year is 30. Okay, see, I have also done the same mistake, which I think most of the students must have done. What I have done, I have done 30% of 62. Can you tell me what mistake I have made here? I have not time apportioned the profit. I have acquired on 1st January, year end 30th September, so it's not a full year acquisition. It's only a 9-month acquisition, and in such case, you cannot take entire full year profit. See, so much struggle in the life of student. Every line, every bits and pieces, you have to be very careful. So it will not be 30% of 62, it will be 30% of 46.5. So 46.5, 30% share, 13.95. You are just wondering okay, what mistake student must have done in this area, and I myself has made the same mistake. See, 207, 13.95 minus 22. One more mistake, still answer is not matching. Now what we have done wrong? I have taken dividend 22 million, company paid a dividend of 22 million. ये क्या हो रहा है? कहाँ हैं हम? अभी तक तो होश में थे. Now the second blunder, which most of student has made in this question, all of you, they have taken entire dividend like me. See, it's okay. I'm making these mistakes, but it's not okay for you to make these mistakes. मेरा तो हो गया, आपका attempt का बात है बच्चा. The costing is huge for making these mistakes. So remember, they distributed 22 million, but you must have received only 30%. Now you hold only 30%. So 22 into 30%, it will be 6.6, right? 6.6. So genuinely, I want to show you that how student do mistakes in these areas, either going aggressively with the question or not thinking too much or being overconfident. Yes, this is easy. You have to remember minute details about these things: dividend, profit, time apportionment, and this all you will understand when you read question very carefully, because reading is the best skill you can have in your arsenal. सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स रीडिंग स्किल को वैल्यू नहीं करते. Do read a 15-20 minute article on a daily basis. May not be related to your studies. Read Economic Times, Mint. You will understand that in 15 to 20 days how good your reading skills has been grown. You will able to analyze, you will able to understand things very uh, um,
differently, we will have greater insights and less silly mistakes. So now we got the correct answer 214. So there was lot of traps here. We we have fallen for all those traps very easily. 214.35 rounded off to 214. They have already written to the nearest dollar. So rounding off is okay. Now let's see question 3. दोबारा हम इस क्वेश्चन 3 के जाल में फंस जाएंगे क्या, जैसे क्वेश्चन 1 और 2 के ट्रैप में हम फंसे. लेट्स सी. Profish Company acquired 80% of Smokwa Company ordinary shares on 1st August 2016. Again, a question on consolidation. What's going on in this examiner report? It's very rare to see all the problematic questions in section A from consolidation area. Good. Let's read the question again. Profish Company means parent company acquired 80% of subsidiary on 1st August 2016. Now, this time I will be careful with dates. Now, is there any mid-year acquisition? No, no mid-year acquisition. Okay. Both company correctly recognized valuation surplus on land in the year 31st July in accordance with I-16 property plant equipment. Revaluation surplus they have correctly recorded. So where do we record revaluation surplus? We record in OCI, and they have recorded correctly. So they must have recorded in OCI and the land. There is no point of depreciation. At least the asset they have given is little bit relaxing to us. One tension is less with land ना, जमीन के साथ एक टेंशन कम है क्या, depreciate नहीं होगी. The revaluation surplus balance as reported in individual financial statement company as follows. Revaluation surplus opening balance at 1st August 2016 is 250 and smoke 50, closing balance 31 375 and 75. What is the balance and revaluation in consolidated statement of financial position accordance with IFRS 10? What do you think? What this question is testing? What they want us to calculate here? I'm not able to understand the requirement. How to solve this question? They want us to calculate the revaluation surplus in group consolidated statement. So what they want us to calculate? Wait, parents revaluation surplus, full revaluation surplus of parent will come. Okay. Parent revaluation, it's similar to retained earning now. See, OCI works similar to retained earning. Understand? If they have asked you to calculate closing retained earning, which they have already asked in the part 1, what you have done? You have taken parents retained earning and then added your share in subsidiaries retained earning. So the subsidiaries post acquisition profit. In the same manner, you will do for OCI. This question is only testing student knowledge of OCI. Most of the students do not understand this simple thing that OCI apportionment works same as retained earning. It's given in the question, parents retained earning is 375. Okay, we will take 375. That full balance will go to parents balance sheet, but subsidiaries post acquisition revaluation surplus will go. So post acquisition is 50 is opening 75. So in P&L they must have shown only 25. And in this 25, will you take entire 25? Yes, you will take entire 25. But parent shares in that 25, you have to remember that you will only take parent share of 25. You will not take minority share. Even in retained earning, you have taken profit, post acquisition profit of subsidiary, but only with the respect, only in respect to parent share. So that thing you have to respect here. And what is the parent share? 80%. So 25's 80% we will do.
It is 20, and the answer is 395, my friend. 395 million. Then, if you have taken any other option, what mistake student may have done in this area? Either they have taken 100% of 25, or they may have added entirely 100% of closing 75. So many students gets confused in these little things, which ultimately are similar to your earlier concept. They are testing OCI, revaluation surplus, you panicked. But remember, this the treatment is same as you do for your retained earning, or how do you calculate your step 5. Nothing new concept will be applied. Now let's look out for the last part. So at least this last part is not again from consolidation. This is tested from little bit different area, which is again a typical area for most of the students, IFRS 9 financial instrument. तो क्या है इसमें बात? Let's see. So it says on 1st March 2015, Bicol company invested 5-year loan notes with a nominal value 3.5 million. Okay, so there is a loan notes. So investment in loan notes 3.5 million. Bicol company received a discount of 398 on the nominal value. The loan note was the loan note pays interest of 7% in arrear and has an effective rate of 10%. The financial asset is classified at amortized cost. Calculate the carrying amount of financial asset as at 28 February in accordance with IFRS 9 financial instrument. So they want us to calculate carrying amount of financial asset at 28 February. So remember, we have invested in 2015, then 15, 16, 16, 17. So they are basically asking carrying value of financial asset after 2 years. So I think it's a simple amortization schedule concept they are testing, and most of the blunder which student must have made, they may not have reduced the discount amount, because ultimately you have not paid 3.5 million, you got a discount of 398. So what you have actually paid at that value, at fair value, you will show your asset. Then you will add effective rate 10%, then you will minus this 7%, and this 7% will be on 3.5 million, remember, not what you have paid, because company always pay coupon rate at nominal value na? It's a rate which is written in contract, and accordingly you will get the closing value, carrying value, carry forward to the next year. So let's see this. They have already prepared, I think, this schedule. So 3102, how they came up with this figure of 3102. They have told us in 3.5 they have removed the discount. This is 3.102 million. And remember, this 7% nominal rate will be applied on nominal value, not on the discounted value, my friend. These small things, student make mistakes either due to lack of practice, due to anxiety, or not able to crack the exam, crack the language, as they have not invested much on reading the questions. And then you lose these silly marks. For the time with me, you must be thinking, sir, we will not lose marks in these areas, but you will lose marks in these areas if you will not be focused, if you think like this, what you are thinking right now. Don't get overconfident. Always be careful. Always be uh, attentive while solving the question. जरा से भी नजर हटी तो काम हो गया. 3102, 310 you will add, minus 245 closing balance. Again, next year opening 317, 245 closing balance. Right? So this was your first part, my friend, section A. I have gone through this section in very much detail.
तो चारों के चारों पार्ट में से 3 पार्ट तो कंसोलिडेशन से टेस्ट करे गए हैं। तो इससे बिल्कुल रेडी रहो इस बात को देख के कि 6 मार्क्स अगर सेक्शन ए में कंसोलिडेशन से आया है, तो कंसोलिडेशन इज़ नो मोर अ एरिया व्हिच विल ओनली बी टेस्टेड इन सेक्शन सी। सेक्शन ए में, बी में कहीं भी आ सकता है कोई भी एरिया। और फिर सेक्शन सी में तो है ही तबाही मचाने के लिए। तो देखते हैं सेक्शन बी में कहाँ से एग्जामिनर ने हमारे को परेशान किया है। तो ये लीजिस का कोई एरिया लग रहा है, लीजिस से घेरा है एग्जामिनर ने। लेट्स सी कि इसको टैकल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। रीड करते हैं। ओके, सो के कंपनी एंटर्ड 3 न्यू लीजेस ड्यूरिंग द ईयर 31st मार्च। तो तीन तीन नई लीजेस दे हैव टेकन ऑन 31st मार्च। क्यों ली भाई तीन तीन न्यू लीज, एक ले लेते। द कमेंसमेंट डेट ऑफ ऑल 3 लीजेस वाज 1 अप्रैल 2014। वो सारी की सारी 1 अप्रैल को कमेंस हो गई, कोई मिड ईयर एक्विजिशन नहीं है। एक और अच्छी बात, प्लांट के लिए क्या कहता है, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर लीज पेमेंट प्रायर टू द पेमेंट ऑफ डिपॉजिट वाज 446,500। तो लीज पेमेंट का प्रेजेंट वैल्यू निकाला है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर लीज पेमेंट प्रायर टू द पेमेंट ऑफ डिपॉजिट। तो डिपॉजिट से पेमेंट, डिपॉजिट से पहले का वैल्यू, तो डिपॉजिट इसमें से माइनस नहीं हो रखा है बच्चा, समझो। इन्होंने एक प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर लीज पेमेंट निकाला है प्रायर टू द पेमेंट ऑफ डिपॉजिट। एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर अनेबल टू मेक सेंस ऑफ दिस थिंग, क्योंकि ये है ही बात नॉनसेंस, लिखने का तरीका ही नॉनसेंस है। क्या कह रहा है, प्रायर टू द पेमेंट ऑफ डिपॉजिट। तभी तो बच्चा परेशान होगा, कैसे गलतियां करेगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देंगे कि डिपॉजिट इज नॉट रजिस्टर्ड, तो बात आसान हो जाए, सीधा सीधा हो जाए। ऐसे क्यों घुमाते हैं सर? और यही है ना, कईयों की घुमाने की आदत होती है। अब आप घूमो मत बस। द डिपॉजिट वाज 40,000 एंड वाज पेड ऑन कमेंसमेंट डेट। ठीक है, डिपॉजिट 40,000 का पे किया, तो ध्यान रखना 446 में डिपॉजिट इंक्लूड है। द फर्स्ट 5 एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ 1,10,000 वाज पेड ऑन 31st। द इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट, ये बड़ा सिंपल सा हो गया। डिपॉजिट का पॉइंट था, डिपॉजिट माइनस कर लेना, बचे हुए पे आपको इम्प्लिसिट रेट 11% का दिया है। हर हर बार जो पेमेंट हो रही है, मेरे को अमोर्टाइजेशन शेड्यूल पूरा क्लियर दिमाग में विजुलाइज हो रहा है। tablet device के लिए क्या कह रहा है, the fair value of tablet device total 26,000 at the commencement date and they are considered asset of low value। तो एक टैबलेट डिवाइस है, 26,000 का लो वैल्यू एसेट माना जाता है। द लीज हैज 3 ईयर टर्म एंड फर्स्ट 2 एनुअल इंस्टॉलमेंट विल बी पेड ऑन 31st मार्च 16। तो लीज हैज 3 ईयर टर्म, तो लो वैल्यू में हमें एज से मतलब नहीं होता। अगर किसी चीज की वैल्यू लो है तो भी उस पर शॉर्ट एग्जामेशन लीज वाला बेनिफिट मिल जाएगा। आपको आरटीयू लीज लायबिलिटी रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा स्ट्रेट लाइन मेथड से पीएनएल में पिटाई करते रहो। So the lease has 3 year term and the first of the 2 annual installment will be paid on 31st March 16। कोई दिक्कत नहीं, अपन को पेमेंट से क्या मतलब है, मतलब पहले साल आप पे नहीं करोगे, सेकंड ईयर से पे शुरू करोगे। मैं तो 26 को 3 से डिवाइड करूंगा, एसएलएम मेथड से ओवर द पीरियड एक्रू करके पेमेंट करता रहूंगा। वो वैल्यू एसेट है ना। प्रॉपर्टी, on 1st April certain Clocken company sold a property for its fair value 7 point when the carrying amount of property was 5 million। अरे भाई, ये वो ना हो जो मैं सोच रहा हूँ। पहला पॉइंट तुमने अच्छा रखा, उसमें भी डिपॉजिट परेशान करता है, लैंग्वेज क्रैक नहीं होती। दूसरा पॉइंट भी बच्चा शायद मैनेज कर लेता, बट तीसरा तो सेल और लीज बैक का लग रहा है भाई। प्रॉपर्टी फेयर वैल्यू कैरिंग अमाउंट 5, सोल्ड अ प्रॉपर्टी फॉर इट्स फेयर वैल्यू, तो फेयर वैल्यू पे बेचा, ये बहुत अच्छी बात है। क्लोकिंग कंपनी इमीडिएटली लीज द प्रॉपर्टी बैक ऑन 1st अप्रैल, द फर्स्ट 5 इंस्टॉलमेंट 1.6 पेड ऑन 31st मार्च। तो ये लीज लायबिलिटी की प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। रिलेवेंट 5 ईयर डिस्काउंट फैक्टर 4, ये भी अच्छा है। वो ये राइट रिटेन्ड अपॉन फेयर वैल्यू इनटू केयर वैल्यू करके आरटीयू निकल जाएगा, बैलेंस जितना ट्रांसफर हुआ गेन लॉस हो जाएगा। ये तो भाई सेल एंड लीज बैक को टेस्ट किया है आपका बच्चा। इट वी हैव डन ऑल द पॉइंट्स ऑफ सेल एंड लीज बैक इन द क्लास, हायर में लोअर में सेम पे, तो सेम फेयर वैल्यूएबल की जितना वी हैव डन उससे कम कम ही है, ये ज्यादा नहीं है। देखते हैं पहली फाइट, फर्स्ट क्वेश्चन। दोस्त मेरे, तैयारी तो हम करते हैं चांद की, तैयारी तो करते हैं हम चांद की, बात कुछ लगता नहीं। क्वेश्चन पूरा पढ़ा, सोचा प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल आएंगी चीजें, आते ही पहला क्वेश्चन है इनका थ्योरी। दाग ज्यादा है,
चाँद तो दिखता नहीं है, मुश्किल है ज़्यादा। कॉन्ट्रैक्ट इज़ लीज़ ओनली इफ इट हैज़ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक कहता है कॉन्ट्रैक्ट लीज़ तभी होता है जब उसमें कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक होती है। तो अगर हम याद करें डेफिनिशन क्या थी डेफिनेशन किसी बच्चे को अगर याद हो थोड़ी बहुत लीज़ की, अपने दिमाग में एक बार डेफिनेशन को दोहराओ। क्या होना चाहिए लीज़ होने के लिए, क्या-क्या कंडीशन होनी चाहिए? कंट्रोल होना चाहिए, आइडेंटिफाइड एसेट होना चाहिए, फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम होना चाहिए, इन एक्सचेंज ऑफ कंसिडरेशन होना चाहिए, राइट? यही लीज़ की डेफिनिशन होती है। जनरली अगर हम अपने कांसेप्ट को याद रखें, अ कॉन्ट्रैक्ट इज़ लीज़ इफ देयर इज़ एन आइडेंटिफाइबल एसेट ये सब ने पढ़ रखा होगा क्लासेस में। यू हैव कंट्रोल, राइट टू कंट्रोल, हाउ, व्हेन टू यूज़ ये सब कंट्रोल का पार्ट होता है। फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम कुछ समय के लिए, कुछ टाइम के लिए होना चाहिए। इन एक्सचेंज फॉर कंसिडरेशन ठीक है पढ़ते हैं कहता है कौन से दो तो ये तो मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है अ पीरियड ऑफ टाइम मस्ट बी डिस्क्राइब्ड ओनली इन टर्म्स ऑफ डेज और वीक्स और बिल्कुल ठीक ये तो बिल्कुल ठीक है इट कन्वेज राइट टू कंट्रोल यूज ऑफ आइडेंटिफाइड एसेट बिल्कुल राइट टू कंट्रोल होना चाहिए इट आइडेंटिफाई पीरियड टाइम ओवर व्हिच एसेट में बी यूज पीरियड ऑफ टाइम ओवर में एसेट पीरियड ऑफ टाइम ये भी ठीक है इट ऑटोमेटिक ट्रांसफर ओनरशिप ऑफ अंडरलाइंग एसेट ये भी ठीक है बिल्कुल बढ़िया हो गया चारों के चारों पॉइंट मैच करते हैं पर बताने दो थे हो गया पोपट अपना चलो भाई अगले अटेम्प्ट की तैयारी करो हो पाएगा ये चारों सही लग रहे हैं कैसे हो पाएगा ये तो प्रॉब्लम है एग्जामिनर की यहाँ पे परेशान कर देता है अब देखो बहुत धीरे धीरे समझो थोड़ी सी बात पीरियड ऑफ टाइम मस्ट बी डिस्क्राइब्ड ओनली इन टर्म्स ऑफ डेज वीक्स और ईयर पीरियड ऑफ टाइम मस्ट बी डिस्क्राइब ओनली इन टर्म्स ऑफ डेज वीक्स और ईयर्स क्या कह रही है कि पीरियड ऑफ टाइम का मतलब यही होता है कि वो समय के रिस्पेक्ट में बताया जाए मतलब तुम्हें अगर तुमने कभी किसी से लीज पे सामान लिया तो वो तुम्हें या तो बोलेगा लीज तुम्हें 10 दिन की लीज है 5 साल की लीज है 6 महीने की लीज है तो लीज हमेशा टाइम के रिस्पेक्ट में बताई जाएगी मतलब लीज हमेशा टाइम के रिस्पेक्ट में बताई जाएगी अब देखो पढ़ते वक्त ये बात बिल्कुल ठीक लगती है बच्चा नाउ दिस टेस्टिंग इज वेरी 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 कंसेप्चुअल ये बात गलत है लीज जरूरी नहीं है कि हमेशा टाइम के रिस्पेक्ट में हो जैसे अगर कई बार लीजेस जो होती हैं वो टाइम के रिस्पेक्ट में ना हो के किलोमीटर के रिस्पेक्ट में हो सकती है जैसे मैंने किसी गाड़ी लीज पे ली तो वो सामने वाला कह सकता है या हमने लीज का टर्म हो सकता है कि गाड़ी मेरे पास रहेगी जब तक मैं 10,000 किलोमीटर ना चल जाए 20,000 किलोमीटर ना चल जाए कभी कभार माइलेज पे मशीन है मैं इस मशीन को अपने पास रखूंगा कितने जब तक इसके 100 घंटे पूरे नहीं हो जाते वंस आई यूज दिस 100 आवर्स ऑफ मशीन तब मैं इसको आपको वापस कर दूंगा तो जरूरी नहीं है कि समय का मतलब हमेशा कोई टाइम ही हो पीरियड ऑफ टाइम का यहाँ पे मतलब है समय तो मतलब है ही पीरियड ऑफ टाइम से समय तो निकल के आता है बट टाइम कैन ऑल्सो ऑल्सो बी इन टर्म्स ऑफ यूसेज ऑफ असेट इन रिस्पेक्ट ऑफ यूसेज ऑफ असेट वो इस वजह से ए गलत हो गया क्योंकि ए में वो स्पेसिफिकली टाइम को डिफाइन कर रहा है डेज में ही ईयर्स में बट टाइम कैन बी इन डेज टाइम कैन बी इन आवर टाइम कैन बी इन किलोमीटर टाइम कैन बी इन माइलेज इट कन्वेज राइट टू कंट्रोल द यूज ऑफ आइडेंटिफाइड एसेट ऑब्वियसली अगर आप लीज ले रहे हो तो आपके पास कंट्रोल होना चाहिए वरना वो एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस बन जाएगा बी बिल्कुल ठीक है इट आइडेंटिफाई पीरियड ऑफ टाइम ओवर विच एसेट में बी यूज्ड तो यहाँ पे जनरल डेफिनेशन की बात करी पीरियड ऑफ टाइम की जनरल बात बिल्कुल ठीक है दे हैव नॉट डिफाइंड पीरियड ऑफ टाइम इट ऑटोमेटिकली ट्रांसफर ओनरशिप ओनरशिप का ट्रांसफर होना क्या लीज में जरूरी होता है ऑब्वियसली नहीं होता हो भी सकता है नहीं भी हो सकता दोनों केस में लीज अलाउड है बट क्या ओनरशिप ट्रांसफर होनी ही चाहिए एंड ऑफ पीरियड में लीज में नहीं ऐसा कहीं नहीं हमने पढ़ा तो प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन से भी यहाँ पे बच्चे आंसर सही पहुंच सकते थे ए और सी में डेफिनेटली कंफ्यूजन होता क्योंकि बी तो हर कोई समझता कि बी राइट है और डी रॉन्ग है ये तो मेरे ख्याल से सबको समझ आता बट यहाँ पे कैश था ए और सी इन दो में से किसको चूज करें क्योंकि कई बार दो चॉइस इतनी मुश्किल हो जाती है कि किसको चूज करें गलत करा तो गए सही करा तो बस तो उस केस में मेरे दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखो कि which have given wider meaning to the point. क्वेश्चन 2 क्या कहता है
The interest expense was correctly accounted during the year 31st March. Calculate interest expense to recognize on the plant lease liability for the year end 31st March 16. तो पहले साल का इंटरेस्ट एक्सपेंस तो ठीक हो गया, अगले साल का पूछ रहा है नेक्स्ट ईयर में कितना ब्याज आएगा। भाई तो पहले साल में ठीक हो गया तो फिर अगले साल में भी आ जाएगा उतना ही, जितना भी क्लोजिंग बचा उस पर लगा दे यार, हमें क्यों परेशान कर रहा है। प्लांट है, शेड्यूल बनाना पड़ेगा, 4465 में से 40,000 माइनस करना, फिर उस पर 11% लगाना, 110 माइनस करना, जो क्लोजिंग आएगा उस पर 11% लगाना, वो तुम्हारा आंसर रहेगा। मेरी बातों से बातें समझ आ रही हैं? दिखाऊं? नहीं सर दिखाओ। अरे भाई तुम्हारा प्लांट 407 का, पहले कैसे 40,000 का डिपॉजिट हटाओ। भाई जो पैसा दे दिया, जो डिपॉजिट तुमने डिपॉजिट इंक्लूड कर रखा है, डिपॉजिट पे ब्याज क्यों लगाओगे? डिपॉजिट पे ब्याज दोगे या लोगे? लोगे नहीं, दो तो मत। दोगे तो बहुत बढ़िया भाई, पैसे डिपॉजिट भी दे दो और ब्याज भी दे दो, तुमसे अच्छा कौन है फिर। मिलो फिर। ओपनिंग लायबिलिटी 407, इफेक्टिव इंटरेस्ट 45, नेट पेमेंट 1110, क्लोजिंग 342 का बाबू। 342 पे फिर ब्याज लगेगा, 38 हमारा आंसर आ जाएगा। चेकआउट कर लो। वो आया कुछ समझ? थोड़ा थोड़ा। आगे चलते हैं। फिर थोड़ा सा प्रैक्टिकल आया ही था कि फिर दिल तोड़ने आ गए ये थ्योरी के क्वेश्चन। सवाल आ जाते हैं उनके, उन सवालों का कोई जवाब ही नहीं है। ये वैसे ही सवाल है जिनका कोई जवाब नहीं होता। कहता है द इलेक्शन फॉर लीज फॉर विच अंडरलाइंग एसेट ऑफ लो वैल्यू कैन बी बेस्ड ऑन लीज बाय लीज बेसिस। तो ये पहले भी आया हुआ है, तभी कहता हूँ एग्जामिनर रिपोर्ट पढ़ के जाया करो। ये पास्ट एग्जामिनर रिपोर्ट में कई बार टेस्ट हो चुका है। क्या लो वैल्यू एसेट को लीज बाय लीज हम मेजर करते हैं या नहीं करते हैं? बता दो जल्दी से, याद हो तो किसी को। भाई लो वैल्यू एसेट का जो इलेक्शन होता है वो लीज बाय लीज होता है। पर्टिकुलरली आप हर लीज के लिए देखोगे लो वैल्यू, या ग्रुप के लिए देखोगे? हर लीज के लिए देखा जाता है, ये ट्रू है। लीज बाय लीज के लिए देखा जाएगा, ध्यान रखना इस बात को। इलेक्शन पर लीज है ये। A class of underlying asset is grouping of underlying asset. It is similar. A class of underlying asset is a grouping of underlying a class of underlying asset is a grouping of underlying asset of a similar fair value. बताओ ये ट्रू या फॉल्स, क्या कहते हो? मैं रिक्वायरमेंट को फिर से पढ़ते हैं, क्या कहता है। सेलेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एग्जाम्पशन अवेलेबल आर ट्रू एंड फॉल्स इन अकॉर्डेंस विद IFRS 16। वो ऐसा तो कुछ नहीं है। Class of underlying asset is a grouping of underlying asset of a similar fair value. False. ध्यान रखना इस बात को। क्या कहता है? The correct answer are true or false. As per IFRS 16, the election for short-term lease shall be made by class of underlying asset to which right to use relates. The class of underlying asset is a grouping of underlying asset of a similar nature and use in entities operation. Election for lease for which underlying asset is of low values can be made on lease by lease basis. तो आई अंडरस्टैंड कि ये वाला पॉइंट काफी बच्चों से गलत हो गया होगा, थोड़ा समझ लो इस बात को क्या कहना चाहता है। दे आर ट्राइंग टू से कि जो क्लास ऑफ अंडरलाइंग एसेट है ना, इट्स नॉट कि यार यू कैन से क्लास ऑफ अंडरलाइंग एसेट इज अ ग्रुपिंग ऑफ अंडरलाइंग एसेट ऑफ सिमिलर फेयर वैल्यू, नहीं। A class of underlying asset is grouping of underlying asset of a similar nature and use in entity operation, जिसका similar nature भी हो और use भी हो। भाई एक कंपनी का प्रिंटर है, अब समझना, मैं यहाँ पे पॉइंट है क्या, जैसे कंपनी के पास एक
कंपनी ने लेस देन 12 मंथ के लिए एक ऑफिस इक्विपमेंट यानी मान लो एक प्रिंटर है, उसको लीज पे लिया 12 महीने से कम के लिए। परचेज ऑप्शन है नहीं, लीज टर्म 12 मंथ और लेस है। तो तुमने किसी ऑफिस इक्विपमेंट के लिए या किसी प्रिंटर के लिए, हालांकि प्रिंटर लो वैल्यू में भी आ जाएगा, मान लो कोई बहुत हाई फाई प्रिंटर है और उसके लिए आपने ना एग्जम्पशन चूज कर लिया। नाउ यहाँ पे ध्यान रखना, अगर आपने इस प्रिंटर के लिए एग्जम्पशन मतलब शॉर्ट टर्म एग्जम्पशन चूज कर लिया, अब आप ऐसा नहीं कर सकते कि बाकी प्रिंटर्स के लिए आप एग्जम्पशन चूज ना करो। नाउ ऑल सिमिलर जो प्रिंटर्स हैं या सिमिलर नेचर के एसेट हैं, सिमिलर यूज के एसेट हैं, उन सब के लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, शॉर्ट टर्म एग्जम्पशन, ये वाली एग्जम्पशन अप्लाई करनी पड़ेगी। ऑल अंडरलाइंग एसेट ऑफ सिमिलर नेचर एंड यूज। सो बेसिकली पॉइंट ये है बच्चों कि जो लो वैल्यू एग्जम्पशन है वो तो लीज बाय लीज है। लो वैल्यू जो आपकी एग्जम्पशन है वो तो आप पर लीज देखते हो, पर लीज। बट ये दिस इज नॉट ट्रू फॉर शॉर्ट टर्म एग्जाम्शन जो आप 12 महीने से कम वाली एग्जाम्शन देखते हो। दिस एग्जाम्शन इज ऑन द बेसिस ऑफ क्लास। याद करो, क्लास के बेसिस पे एक और चीज होती थी, IS 16 होता था, रिवैल्यूएशन मॉडल और कॉस्ट मॉडल। वो पर्टिकुलरली क्लास पे लगता था। अगर आपने एक बिल्डिंग को रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो किया तो सारी बिल्डिंग फिर आप रिवैल्यूएशन मॉडल पे लेके जाओगे। तो यहाँ भी वही बात हो रही है कि अगर आपने किसी पर्टिकुलर एक असेट को, एक ऑफिस इक्विपमेंट को शॉर्ट टर्म लीज पे लगा दिया, तो फिर उसकी सिमिलर नेचर और यूज वाले तो सारे उसी में जाने चाहिए ना। क्योंकि जब आप एक के लिए शॉर्ट टर्म एग्जाम्पशन ले रहे हो तो बाकी सबके लिए भी लेनी होगी। तो ये है कि इट इज क्लास बाय क्लास, इट इज नॉट लीज बाय लीज। बट यहाँ पे क्या था, एक तो ये कंसेप्ट आपको सिखाया एग्जामिनर रिपोर्ट ने बहुत अच्छा कि लो वैल्यू एग्जाम्पशन असेट्स आर क्लास बाय क्लास। दूसरा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहाँ पे हमें सीखने को मिलता है बच्चों, definition of group of assets, class of assets। A class का definition क्या, class of underlying asset is grouping of underlying asset of similar fair value। जितने भी एसेट हैं जिनकी फेयर वैल्यू, यानी जनरली अपन क्या बोलेंगे, जिनकी भी वैल्यू सेम है वो सारे क्लास कहलाएंगे। तो जरूरी नहीं है, यहाँ पे वैल्यू से नहीं बात करी गई है। तुम्हारा यूज, उनका नेचर, भाई तुम्हारा एक ऑफिस इक्विपमेंट का यूज फैक्ट्री में होता है, एक ऑफिस इक्विपमेंट का यूज ही एडमिनिस्ट्रेशन में है, कुछ और बिजनेस यूज है, बिल्कुल डिफरेंट यूज है। तो वहां से वो फिर सिमिलर नेचर में कैटेगरी में नहीं आ पाएगा। सिर्फ फेयर वैल्यू सेम होने से आप सिमिलर वैल्यू नहीं बोल सकते। तो क्लियरली बोल दिया, क्लास ऑफ अंडरलाइंग एसेट, ग्रुपिंग ऑफ अंडरलाइंग एसेट इज सिमिलर नेचर, मतलब उसका नेचर सिमिलर होना चाहिए। ऑफिस इक्विपमेंट है तो ऑफिस इक्विपमेंट होना चाहिए और उसका यूज भी सिमिलर होना चाहिए। अगर वो फैक्ट्री में यूज हो रहा है तो बाकी भी फैक्ट्री में ही यूज होने चाहिए। Few candidates answer this correctly. The spread of selected answer says that many candidates have guessed the answer and not selected the area of syllabus. Any areas that may be tested in objective question is section A and B. ठीक है। अगला क्या है, एनुअल इंस्टॉलमेंट टेबलेट डिवाइसेस आर 16,000 ईच। व्हाट इज द लायबिलिटी शुड बी रिपोर्टेड इन स्टेटमेंट ऑन 31 मार्च। तो बच्चों, पहले साल कितनी लायबिलिटी टू द नियरेस्ट 1000 बोलता है, तो स्ट्रेट लाइन मेथड लगा देंगे। आपका कितना अमाउंट है, 16,000 रुपए। एक मिनट देख लेते हैं इसको। The fair value of tablet total 26,000. They are considered asset of low value. The lease has 3 term and first 2 annual installment are paid on 31st March. तो भाई फेयर वैल्यू तो इसका इतना है, ठीक है, फेयर वैल्यू से मतलब नहीं है, हम पे कितना कर रहे हैं। कहता है द एनुअल इंस्टॉलमेंट टेबलेट डिवाइस है 16,000, तो अपन पे तो 16,000 रुपए कर रहे हैं। अब 16,000 रुपए अगर आप पे कर रहे हो तो कितना पे हो गया, 2 साल पे करोगे, पहले साल यू आर नॉट पेइंग एनीथिंग। तो 2 साल का अमाउंट बच्चों कितना बन गया आपका टेबलेट का, 32,000 रुपए। 16,000 into 2, it will be 32,000 you are basically paying। whatever is the fair value, हमें मतलब नहीं है। लो वैल्यू एसेट है, लीज लायबिलिटी बनेगा नहीं, स्ट्रेट लाइन बेसिस पे एक्सपेंस दिखाएंगे। लीज का टर्म 3 साल का बोला है, टोटल पेमेंट लीज टर्म पे 32,000 की हो रही है।
डिवाइड बाय 3, तो आपका एनुअल एक्सपेंस स्ट्रेट लाइन मेथड से कितना बन गया? 1667 per annum per year. नाउ पहले साल आपने पेमेंट करी नहीं, पूरा का पूरा लायबिलिटी बन जाएगा ये। और ये आपने पेमेंट ही अगले साल से शुरू करी है, एंट्री क्या हो जाएगी इसकी? डेबिट एक्सपेंस, क्रेडिट एक्रूवल। तो इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 11,000 बनेगा। ए करेक्ट आंसर है आपका। तो दिस वाज अ सिंपल क्वेश्चन कंपैरेटिवली। क्वेश्चन 4 का आसान आंसर था। ठीक है, समझ आ गया ना बच्चों? भाई टोटल फेयर वैल्यू से क्या मतलब है? मैं किसी चीज की फेयर वैल्यू 10,000 रुपए, बट मैं उसके लिए 50,000 दे रहा हूँ, तो मैं तो 50,000 पे कर रहा हूँ ना। चाहे फेयर वैल्यू से कम कर रहा हूँ, ज्यादा कर रहा हूँ, मैं तो 50,000 पे कर रहा हूँ। तो मेरे को इंटरेस्ट का उसका कुछ भी पेमेंट है वो मिला के देना पड़ रहा है मुझे। बट यहाँ हम लो वैल्यू के केस में आरटीओ और लीज लायबिलिटी बनाते नहीं, एग्जाम्पशन मिल जाती है। तो टोटल पेमेंट 32,000 तीन साल की। तो पहले साल की पेमेंट 11,000 एक्रू हुई, और राउंड ऑफ करके 11,000 एक्रू हुई, और 11,000 मैंने पे नहीं करा है पहले साल, तो लायबिलिटी कितनी हुई? ये तो पूछा है, पहले साल की लायबिलिटी 11, अगले साल पे करूंगा मैं। जो मैं अगले साल पे कर रहा हूँ 16,000, तो 11,000 और पुराने में से भी पेमेंट हो जाएगी। जो लायबिलिटी बचेगी वो दिखाएंगे, फिर अगले बार 16 की 16 खत्म हो जाएगी। फिफ्थ लास्ट पॉइंट देखो, क्वेश्चन 5, द प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन क्वालिफाइड एज अ सेल। भाई सेल मान लिया है, और कहता है सेल एंड लीज बैक है। व्हाट इज द रिकॉग्नाइज्ड गेन ऑन प्रॉपर्टी फॉर द ईयर एंड 31 मार्च IFRS 16। तो ध्यान रखना बच्चों, इस केस में जब भी आपको गेन लॉस निकालने के लिए आए, सेल लीज बैक में गेन लॉस काफी फ्रिक्वेंटली आपको निकालने को आ सकता है। और जब भी ये निकालने को आता है, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। याद रखना है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज लायबिलिटी निकाल लो अपॉन फेयर वैल्यू ऑफ फेयर वैल्यू ले लो आप यहाँ पे। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज लायबिलिटी कितना हो गया? 1.6 आप पे करोगे, फैक्टर दिया हुआ है 7.123, 7.123 आपका प्रेजेंट वैल्यू हो गया। और फेयर वैल्यू कितनी दी हुई है एसेट की? 7.4, 7.4 फेयर वैल्यू आपको एसेट का गिवन। आपको गेन कितना हो रहा है? 5 में से 7.4, 2.4 का गेन हो रहा है। ध्यान रखना, 2.4 का आपको गेन है, बट कैन यू रिकॉर्ड एंटायर 2.4? यू कैन नॉट। जितना भी भाई एंट्री क्या हुई, डेबिट कैश, डेबिट आरटीयू, क्रेडिट लीज लायबिलिटी। फिर आप देखोगे इसमें अगर कुछ कैश पे किया होगा तो कैश आ जाएगा। असेट आपका जा रहा है, क्रेडिट असेट हो जाएगा, क्रेडिट गेन आ जाएगा। तो कैश कितना मानोगे आप यहाँ पे? आपने कहा फेयर वैल्यू पे ही बेचा है 7.4, असेट कितने का चला गया आपका? 5 मिलियन का असेट चला गया। लीज लायबिलिटी आपकी कितनी हो गई? 7.123 की लीज लायबिलिटी हो गई। बुक्स में आरटीओ कितना दिखाओगे? 7.13 इंटू 7.4 इंटू 5 मिलियन, कैरिंग वैल्यू ऑफ असेट। इससे क्या निकलता है? आरटीओ निकल जाता है। तो 5 इंटू 7.123 डिवाइड बाय 7.4, ये आपका 4.81 का आरटीओ आ गया। बैलेंसिंग फिगर आपका प्रॉफिट लॉस आ जाएगा। जितना भी आपका बचा अमाउंट, दैट विल बी योर प्रॉफिट लॉस। सो 4.81 प्लस 7.4 माइनस 7.123, ये आ गया आपका 1087। तो राउंड ऑफ नियर थाउजेंड्स के लिए करोगे, 90,000 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो करने के कई तरीके हैं इस वाले एरिया को, बट ये तरीका आपका सबसे बेस्ट है, जिसमें यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दैट एवरी पार्ट। आपका सेल प्राइस कितना है? जितना फेयर वैल्यू है 7.4, कैरिंग वैल्यू 5 मिलियन, टोटल गेन कितना हो गया? 2.4 का। भाई 5 मिलियन की चीज आपने 2.4 7.4 में बेची, तो गेन 2.4 का हुआ ना। अल्टीमेटली 96%
आपने रिटेन कर ही लिया है, तो 96% अगर आपने रिटेन कर लिया है, तो गेन आपको कितना होगा? सिर्फ 4% आपको गेन होगा बचा हुआ 2.4 का। 2.4 का 4% आपका गेन आ जाएगा। नियरेस्ट आपका 1000 हो जाएगा। दिस 7.123 एंड 7.4 रिप्रेजेंट रिटेन्ड। आपने कितना रिटेन करा? दिस इज 96% है, तो 96% यू हैव रिटेन। तो आपने बेच कितना दिया? 4% ही बेचा है ना, तो 2.4 जो आपका 2.4 मिलियन है, इसका 4% ही तो आपका 4% ही तो गेन आप रिकॉग्नाइज करोगे 2.4 का। तो दूसरा तरीका आपका ये भी है कि 2.4 का आप 4% निकालोगे तो भी नियरेस्ट कौन सा आ जाएगा आपका? 90,000। तो जैसे चाहो वैसे कर लो, बस ध्यान रखना जो फॉर्मेटिंग है वो बिल्कुल सिंपल है। कैश आपने 7.4 का है, आरटीयू में कितना जाएगा? तो 5 मिलियन का आपका असेट है। इसका रेशो हमेशा आरटीयू में चला जाता है। ये जो हमने क्लास में डिस्कस किया मैंने उसी फॉर्मेट से सॉल्व किया जानबूझ के। बुक ने थोड़ा अलग किया है, बट फॉलो दिस, यू विल नेवर लूज मार्क्स। बात करें बच्चों, तो फाइनली हमारे पास लास्टली इसमें सेक्शन सी आ जाता है। तो सेक्शन सी तो मेनली मिस्टेक्स ही देखनी है। अभी अपन पूरा सेक्शन सी सॉल्व करने के पर्पस में नहीं है। मेनली वी विल चेक आउट कि क्या गलतियां अपन को सेक्शन सी में ध्यान रखनी है कि बच्चे ना करें। तो सबसे पहले तो बच्चा सेक्शन सी का जो क्वेश्चन है, पहला वाला पार्ट जो रेशो का पार्ट है, उसके लिए कुछ मेजर चीजें आपको बता देता हूँ। जीपी मार्जिन, ओपी मार्जिन, रिटर्न कैपिटल, गियरिंग, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल सा पार्ट है, कैलकुलेशन है। दिस पार्ट ऑफ क्वेश्चन, कैलकुलेशन ऑफ फाइनेंशियल रेशियो, कैंडिडेट नीड टू नो हाउ टू कैलकुलेट दिस रिलेटिवली कॉमन रेशियो स्पेसिफिकली टू कैलकुलेट gearing stated in requirement, ठीक है। while calculating ratio candidate must show their working in full। जब भी रेशियो कैलकुलेट करोगे तो अपनी वर्किंग देखो, पॉइंटर्स बता रहा हूँ सिर्फ मोटा मोटा ध्यान रखना। रेशियो आप बहुत बोलते हो ना बच्चों, टफ है, तो उनके लिए ध्यान रखो। रेशियो के लिए ध्यान रखो, वर्किंग हमेशा करके दिखाओ। क्यों सर? अरे तुम डायरेक्टली आंसर लिख दोगे, कैलकुलेशन कुछ भी मिस्टेक हुआ कैसे आया उसे कैसे पता लगेगा? मार्क्स पूरे कट जाएंगे। बट कैलकुलेशन दिखेंगे तो मार्क्स आधे कटेंगे। द प्री फॉर्मेटेड रिस्पॉन्स प्रोवाइड कैंडिडेट टू फैसिलिटेट दिस, ठीक है। बना बनाया फॉर्मेट देते हैं फिर भी वर्किंग नहीं करके आते। मोस्ट कैंडिडेट परफॉर्म वेरी वेल ऑन दिस रिक्वायरमेंट, हाउएवर सम कॉमन एरर, हमारे लिए तो यही है। कॉमन एरर कौन कौन से हैं? यूजिंग द रॉन्ग प्रॉफिट मेजर इन कैलकुलेशन ओपी मार्जिन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड बिफोर फाइनेंस एंड इनकम टैक्स। वह ओपी मार्जिन के लिए गलत ले लिया, रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए गलत ले लिया। कैसे चलेगा ये तरीका? कैलकुलेटिंग कैपिटल एम्प्लॉयड सोली एज डेट और सोली एज इक्विटी। भाई ऐसे ऐसे बच्चे ब्लेंडर कर रहे हैं क्वेश्चंस में, तो मार्क्स कैसे आएंगे? कैपिटल एम्प्लॉयड इज नॉट डेट, इज नॉट इक्विटी। व्हाट इज कैपिटल एम्प्लॉयड? विद टोटल एसेट माइनस करंट लायबिलिटी और इक्विटी प्लस डेट, क्लासेस में पढ़ते हैं हम। ओपी मार्जिन कैसे निकालोगे? ऑपरेटिंग प्रॉफिट लोगे, डिवाइड बाय सेल्स करोगे। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालोगे? वही। तो यहाँ पे बच्चे गलतियां कर रहे हैं। कैलकुलेटिंग गियरिंग इज डेट अपॉन डेट व्हेन द करेक्ट फॉर्मूला वाज स्टेटेड इन द रिक्वायरमेंट। अरे भाई, अगर तुम्हें बता रखा है कि डेट अपॉन डेट प्लस इक्विटी नहीं लेना है, डेट बाय इक्विटी लेना है, तो डेट बाय इक्विटी लोगे ना। अपनी मर्जी क्यों चला रहे हो? नो क्रेडिट वाज अवॉर्डेड एज नो ओन फिंगर रूल वाज अप्लाइड इफ रॉन्ग फार्मूला इज यूज्ड बाय गिवन द गियरिंग फार्मूला वाज एक्सप्लिसिट। कहता है ओन फिंगर रूल है, मतलब एक गलती का मिस्टेक एक ही बार कटेगा। बट जब तुम्हारे को बता रखा है और तुम उसको सुन के अपनी मनमानी करोगे, तब नहीं, तब अलाउ नहीं करेंगे। रूल सामने लिखा है, रेड लाइट क्रॉस मत करो, तुम जाके क्रॉस कर देते हो। भाई हमें अपने मन की करनी है, फिर एग्जामिनर नहीं चलने देगा।
तो ये कुछ कॉमन एरर है फॉर्मूलेज में, बच्चों को पता नहीं कौन सा प्रॉफिट कब लेना है, कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेशन नहीं आता, गिवन है डेट बाय इक्विटी, ये तो भाई अ, ये वाले मार्क्स लूज करना तो बस वही है, आग का दरिया है और डूबना है जान पूछ के। पुल बना हुआ है, पुल से जाना नहीं, मैं डूब के ही जाऊंगा, बस उसे मुश्किलें झेलनी पड़ेंगी। कैलकुलेटिंग फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस एंड यूजिंग प्री फॉर्मेट रिस्पॉन्स प्रोवाइडेड, तो कुछ फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस कैलकुलेशन भी इसमें आई हुई थी। वो फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस से कुछ ना कुछ गेन लॉस आएगा बच्चों, ऑब्वियसली। फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंसेस का गेन लॉस, मॉनेटरी आइटम का अगर गेन लॉस है एफआर में, तो वो पीएनएल में जाता है, पीएनएल में जाएगा तो रिटेन अर्निंग को भी इम्पैक्ट करेगा, रिटेन अर्निंग को इम्पैक्ट करेगा तो इक्विटी को भी इम्पैक्ट करेगा। तो यहाँ पे बच्चे थोड़ा सा गड़बड़ कर गए। 1 दिसंबर को इन्होंने 3,000 रीट्रांसलेशन किया है, 1,000 का गेन आया है, देखें क्या गलती हुई। कैलकुलेशन तो अभी ना कोई मुद्दा नहीं है। मैनी कैंडिडेट करेक्टली कैलकुलेटेड फॉरेन एक्सचेंज गेन एंड वर एबल टू इंक्रीज ऑपरेटिंग प्रॉफिट अकॉर्डिंगली। अच्छा, बच्चों ने क्या किया, गेन निकाला। अच्छा, अब कई बच्चों को पता नहीं होगा गेन ओसीआई में जाएगा पीएनएल में जाएगा, ध्यान रखना मॉनेटरी गेन पीएनएल में जाएगा, और पीएनएल में जाएगा तो प्रॉफिट आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ से बढ़ेगा। सब ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्यों बढ़ाया आपने, अब यहाँ भी कैच है, ध्यान रखना। ऑपरेटिंग प्रॉफिट तब बढ़ेगा जब ये रेगुलर बिजनेस नेचर के आइटम पे ये फॉरेन एक्सचेंज आया होगा। अगर ये लोन पे किसी और पे आता तब ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट को इम्पैक्ट नहीं डालता, तब ये फाइनेंसिंग में जाता। Whereas some candidate treated this incorrectly as a loss, अरे मेरा गेन नहीं लॉस निकाला, वो तो कैलकुलेशन ही ब्लेंडर कर दिया। मोस्ट कैंडिडेट डिड नॉट रिकॉग्नाइज द इफेक्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंट डायरेक्ट डिफरेंस इन इक्विटी। कई बच्चों ने इसका इम्पैक्ट इक्विटी पे नहीं दिखाया, भाई प्रॉफिट बढ़ाओगे तो रिटेन अर्निंग भी बढ़ेगा ना। एनी फार्मूला एरर पेनलाइज इन रिक्वायरमेंट ए वाज नॉट सब्सिक्वेंटली पेनलाइज इन पार्ट बी ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ ओन फिंगर रूल, दिस हाउ डिड नॉट अप्लाई टू गियरिंग डिस्कस्ड अबव। बार बार बेइज्जती कर रहा बच्चों, कह रहा है कि पार्ट ए में तुमने जो भी गलतियां करी फॉर्मूले की, मैं उसके लिए पार्ट बी में आपको पनिश नहीं करूंगा। ठीक है, आपने गलत कैलकुलेशन करी, जो भी है पार्ट बी में उसके लिए पनिश नहीं किया जाएगा, पार्ट बी इज एनालिटिकल पार्ट, पार्ट बी में आपको उसके लिए बट आपने डेट इक्विटी की जो फॉर्मूले में गलती करी उसके लिए तो पार्ट बी में भी आपको नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मेरे बताने के बाद भी आपने बात नहीं समझी। बताओ इतना गुस्सा, ऐसे तो हम बच्चों को इतनी बात बताते रहते हैं, बच्चे कोई बात नहीं मानते, फिर ऐसे थोड़ी चलता है एग्जाम में। रिक्वायरमेंट 13 मार्क्स, एनालाइज द परफॉर्मेंस पोजीशन ऑफ पोटेंशियल एक्विजिशन टारगेट। अच्छा, तो 13 मार्क्स के लिए कहता है कि एनालाइज करो परफॉर्मेंस पोजीशन ऑफ पोटेंशियल एक्विजिशन टारगेट। अब देखना, अब यहाँ पे ध्यान रखो कि ना आपका रोल क्या है। बच्चे कहते हैं ना एनालिसिस में वाई कैसे लिखें, इम्पैक्ट कैसे लिखें, जस्टिफाई कैसे करें। देखो, आप सेम बात को रिपीट करोगे ना, रिपीट का कोई मार्क्स नहीं है। एनालिसिस में आपने लिख दिया कंपनी ए हैज मोर गियरिंग, कंपनी बी हैज लेस गियरिंग, कंपनी सी इज मोर रिस्की, दैट फलाना ढिमकाना, आपने कुछ भी लिख दिया। आप फैक्ट को बार बार कितनी बार भी लिखो, इफ यू आर स्टेटिंग द फैक्ट यू विल नॉट गेट एनी मार्क्स, नो मार्क्स फॉर स्टेटिंग द फैक्ट। बात आप समझ लो कान खोल के, मार्क्स आपको बच ये नहीं कि आपको एनालिसिस वो लिखनी है जो एग्जामिनर ने लिखी है, भाई आप अपने हिसाब से लिखो पहली बात तो। कई बार बच्चे तो सर मेरा एग्जामिनर से मैच नहीं कर रहा, अरे तो मैच क्यों नहीं कर रहा, बिल्कुल इर्रेलेवेंट चीज लिख रहे हो क्या, उसको सोचो ना, मैंने जो लिखा है वो जस्टिफाइड ही नहीं है। अगर बिल्कुल ही गलत बात है तो ठीक है, बट अगर हाँ कुछ है, हो सकती है बात, तब बात वो भी ठीक हो सकती है। ऐसा नहीं एग्जामिनर के सारे पॉइंट से ठीक होंगे, तो उसके मार्क्स नहीं है। मार्क्स किस चीज के हैं, वाई के। वाई नहीं समझ आ रहा, इम्पैक्ट के, हाउ इट विल इम्पैक्ट योर डिसीजन। क्या डिसीजन है, एक्विजिशन का, उसको वाई नहीं तो इम्पैक्ट कुछ ना कुछ तो बताना पड़ेगा सिनेरियो। तो यहाँ पे कुछ इन्होंने एग्जाम्पल बहुत अच्छे देता है एग्जामिनर, जिससे ना क्लैरिटी मिलती है कि ना बच्चे ने क्या गलती करा। तो उसको पढ़ना चाहता हूँ मैं आपके साथ, देखते हैं। This part of question test, including interpretation of financial and non-financial information, candidate needed to know how to analyze and interpret the information in the scenario to conclude one of the two company acquired should invest in। अब देखो बिल्कुल क्लियर कह रहा है कि तुम्हारा विजन क्या है। यहाँ पे कहता है तुम एक बात समझो कि इन दोनों कंपनी में से एक कंपनी पे इन्वेस्ट करना है। भाई तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, एसीसीए कर लो, बीकॉम कर लो, एसीसीए कर लो, सीए कर लो। तुम दोनों में से एक ऑप्शन को चूज कर रहे हो, तो तुमसे खुद से डिसाइड हो नहीं रहा, तुमने एक बंदे को पकड़ा,
जो कि आप लोग हो, जिसके खुद के हाल बुरे हैं। एक खुद 12th स्ट्रगलर को आपने पकड़ा, यूपीएससी स्ट्रगलर को पकड़ा, उससे बोल रहे हो भाई बता क्या करें, बीसीसीए करें या सीए करें। उसका हाल ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप खुद कहो यार मुझे नहीं पता मैं क्या करूं, फिर तो एग्जामिनर कैसे जाने देगा। वो आप तो भाई कंसल्टेंट रोल पे हो, आपको तो कंपनी के लिए बताना है कि उसको कहाँ जाना चाहिए। सोचो, खुद सोचो, आपकी इन्वेस्टमेंट होती तो आप कहाँ करते, इसी कैसे चूज करते। तो वैसे ही सोचो कि एक्वा कंपनी शुड इन्वेस्ट इन किस कंपनी में इसे इन्वेस्ट करना चाहिए। दो कंपनी की बात हो रही है तो आपके आंसर में कंपैरिजन होना चाहिए, इम्पैक्ट होना चाहिए। वाई से ज्यादा इस क्वेश्चन में इम्पैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये कंपनी से तुम्हारी इन्वेस्टमेंट डिसीजन पे क्या इम्पैक्ट आता है। हर बात का तुम्हारे को उसे फिर एनालिसिस बोलते हैं। द परफॉर्मेंस इंटरप्रिटेशन क्वेश्चन कंटिन्यूज टू बी पुअर, कंटिन्यूज टू बी पुअर, कह ही रहा है क्वेश्चन, खुद कह रहा है। हर बार वही गलतियां, हर बार वही दिक्कतें चलती आ रही हैं, हमें तो अब आदत सी हो गई है। तो आदत सी है ऐसे जीने में। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रीड द फॉलोइंग गाइडेंस केयरफुली सो दे कैन बी अप्लाइड बेटर। कहते हैं मैं कैंडिडेट्स को एडवाइस कर रहा हूँ कि ये जो मैं आगे लिखी हुई बात कह रहा हूँ उसे केयरफुली रीड करो। आपको बिल्कुल मालूम है बच्चा, जो बात एग्जामिनर कहे, जो बात टीचर कहे, मेंटोर कहे, वो बिल्कुल नहीं माननी होती है ना। तो मैं आपको क्या बोलूंगा, नहीं पढ़ना। अब आप पढ़ोगे, राइट। बिल्कुल मत पढ़ना जो आगे लिखा है, आंखें बंद कर लो, बिल्कुल मूव ऑन कर जाओ, वीडियो बंद करो और आराम से सो जाओ। क्यों देख रहे हो वीडियो, तुम उल्टा ही करना होता है। तुम बच्चों यही चल रहा है तुम्हारा, नहीं मानोगे बात, उल्टा ही पढ़ाना पड़ेगा। तुम पढ़ना मत तुम। कैंडिडेट कंटिन्यू टू प्रोवाइड जेनेरिक आंसर दैट फेल्स टू रिलेट टू इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द सिनेरियो। कहता है बच्चा देता है जेनेरिक आंसर। अरे जेनेरिक आंसर कैसे चले, चलेगा जेनेरिक आंसर। उसने पूछा आपसे कि हम में क्या देखा आपने, क्या बोलोगे, जनरल आंसर दे दो। ये कोई आंसर दिमाग में नहीं आएगा। तो भाई तो गए फिर फंस जाओगे, ऐसे बच्चे फंस जाएंगे। भाई बातें बनाओ थोड़ा सा। देखो, नो मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर स्टेटिंग द कंस्टिट्यूएंट पार्ट्स ऑफ रेशियो कैलकुलेशन और व्हाट रेशियो मींस इन जनरल टर्म्स। कहता है जो कैलकुलेट करा वही ऊपर बता दिया, द 16% हायर, और क्या रेशो का मतलब है। डेट इक्विटी रेशो मींस हाउ एफिशिएंट योर बिजनेस इज, हाउ मच geared is your business is, जीपी मार्जिन टेल्स यू हाउ मच मार्जिन यू आर अर्निंग ऑन योर सेल। भाई समझा क्यों रहे हो। नॉर आर द मार्क्स अवॉर्डिंग फॉर स्टेटिंग दैट अ रेशो इज बेटर और वर्स। और एक तो बड़ा बच्चा, दिस रेशो जीपी मार्जिन इज हायर देन इंडस्ट्री, कंपनी ए जीपी मार्जिन इज बेटर देन कंपनी बी, सो इन्वेस्ट इन कंपनी ए, कंपनी ए इज गुड। रहने दो भाई, ऐसा नहीं चलेगा भाई। आप उनसे अच्छे हो क्योंकि आप अच्छे हो, आप बहुत बुरे हो क्योंकि आप बहुत बुरे हो। भाई क्यों बुरे हो, क्या बात है, कुछ तो बताओ। बस हो, बचाओ कोई इनसे। सुन, सुन लो भाई। A good answer reflect on the, अब सुनो, good answer reflect, नहीं उल्टा बोलना मत सुनो। A good answer reflects on the information from the scenario, सिनेरियो से इंफॉर्मेशन निकाल के लिखता है, उसके बारे में लिखता है। एंड हाउ इट मे हैव इम्पैक्टेड द रेशो। फॉर एग्जांपल नोट 2 and 3 provided information on debt for two potential acquisition targets. For example, note 2 and 3 provided information on debt for two potential acquisition target. Many candidates simply stated that gearing of Coral company 125% excluding foreign was worse. Uh, gearing level was higher. क्या कह रहा है मतलब, ठीक है जो भी नोट वोट था देख लेना, मोटा मोटा यहाँ से देखना बात। कहता है मैनी कैंडिडेट सिंपली स्टेटेड दैट गियरिंग ऑफ कोराल कंपनी वाज वर्स देन रेफ। मतलब एक गियरिंग कोराल की बहुत ज्यादा है, एक की 125% है, दूसरे की 33% है। तो कोराल की गियरिंग, गियरिंग फॉरेन एक्सचेंज वाले पॉइंट को छोड़ो, तुम पहले सिंपल आम जिंदगी में आ जाओ। तो एक की गियरिंग 125% है, दूसरे की गियरिंग सिर्फ 33% है। सो क्या कहता है, बिकॉज इट्स गियरिंग लेवल वाज हायर अ स्ट्रॉन्गर आंसर वुड गिवन। बच्चों ने क्या लिखा है, कोराल कंपनी इज हाईली गियर्ड देन अ रीफ कंपनी विच इज बैड। क्या बात बोली है, क्या बात बोली, हाईएस्ट घोषित कर देना चाहिए आपको अगर ये बात लिख के आते हो तो।
फिर आपको आईएएस ही कराना चाहिए। लगे रहो आईएएस करने में, क्योंकि ऐसा दिमाग यहाँ क्या काम आएगा? ऐसा दिमाग तो बना ही कुछ ऊँचे काम करने के लिए क बना है। अगले पीएम, तैयारी करो बच्चों। अरे भई, तुम लिख के आ रहे हो 125% गियरिंग है, उसकी 33% गियरिंग है, कोरल कंपनी की बहुत ज़्यादा हाई गियरिंग है, कोरल कंपनी बहुत डरावनी है, कोरल कंपनी बहुत रिस्की है, कुछ ना मिलना मार्क्स इस बात के। तुम बात फैक्ट को रिपीट करते रहोगे, कोई फ़ायदा नहीं। इम्पैक्ट बताओ, इन्वेस्टमेंट डिसीजन पे इम्पैक्ट बताओ भाई, सिनेरियो में ढूँढो। कहता है स्ट्रॉन्ग आंसर वुड रिकॉग्नाइज दैट नॉट ओनली कोरल कंपनी डेट इज़ ग्रेटर बट इट इज़ ड्यू फॉर अरे! अब क्वेश्चन में क्लियरली बोला हुआ है कि 2 साल में इसकी पेमेंट आने वाली है। तो तुम्हारा एक तो इतना हेवी डेट और उसकी पेमेंट आने वाली है। तुम ज़रा सोचना कि एक ज़रा एक बात समझो, तुम्हारे को तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है। एक ऐसा एसेट तुम्हें मिलने वाला है जिसके ऊपर बहुत मोटा लोन है और वो लोन आपको 2 साल में चुकाना है। और एक दूसरा एसेट है जिस पे लोन कम है और अमाउंट भी बहुत टाइम बाद देना है। कौन से एसेट के साथ जाओगे? एक तो आंसर सबका क्लियर है कि सर हाँ, भई जिस इंसान पे लोन ही लोन चढ़ा हुआ है, ब्याज ही ब्याज चढ़ा हुआ है, लोन की रीपेमेंट करीब में है, भारी लोन ले रखा है, उससे दोस्ती कर लोगे क्या? उससे प्यार कर लोगे क्या? उससे शादी कर लोगे क्या? नहीं करोगे ना। यहाँ कैसे कर लेते हो? तो यहाँ पे बात समझो कि ड्यू फॉर रीपेमेंट इन 2 इयर्स टाइम है, लोन भारी भरकम चढ़ा हुआ है, लिखो ये अब एनालिसिस है। अब ये बातें लिखना आपने सिनेरियो से रिलेट करके चीज़ें लिख रहे हो कि भाई इस पे डेट भी ज़्यादा है, बट डेट भी ज़्यादा रिस्की है, गियर्ड है, इसको कंपनी को दिक्कत हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा। अरे सिनेरियो की बात भी तो करो, फिर जनरल आंसर में क्यों जा रहे हो एनालिसिस? जनरल एनालिसिस क्यों कर रहे हो? जब कह रहा है कि रीपेमेंट 2 साल में तो अब यहाँ पे एक्विजिशन पे इम्पैक्ट देखो कि इट्स दे हैव अ हाई फाइनेंशियल रिस्क। They need refinancing to pay this amount of money. They need another loan to pay for the payment of this amount. It can create high liquidity crunch. The reef company has less debt and 8 years before repayment, this impact on acquisition could then be explored. इम्पैक्ट डिसीजन में आएगा नहीं, इस बात से आएगा बिल्कुल। ये अब यहाँ पे पूरा ज्ञान, गीता का ज्ञान है इस 4 लाइन में। और ये बताओ आपको कैसे सिखाया जाए? कैसे समझ में आए? कैसे कैसे आप समझो कि यार ये गलती अपन को एग्ज़ाम में नहीं करनी? करके देखना इस क्वेश्चन को खुद से और यही लिखोगे आप कोरल कंपनी गियरिंग इज़ हाई, दे मस्ट हैव टेकन ह्यूज अमाउंट ऑफ लोन। अरे हाँ भाई, गियरिंग तो लोन से ही आती है, क्या बता दिया तुम्हें? ये तो वही बात हो गई कि बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। आई एम नॉट हंग्री। अच्छा, क्यों? बिकॉज़ आई हैव ईटन द फूड, मैंने खाना खाया है। अरे! क्या करोगे ऐसे कोई तुम्हें दोस्त मिल जाए जो ऐसी बातें किया करे? कंट्रोल कर पाओगे खुद को? सोचो, एग्ज़ामिनर कैसे करता होगा कंट्रोल? तो वही लिखो ना यहाँ पे कि यार डेट हायर है, ठीक है, बट वो हाई डेट रिपेबल भी 2 साल में है। फर्दर फाइनेंसिंग रिस्क, इंक्रीजिंग द फाइनेंसिंग रिस्क, नीड हायर लेवल ऑफ liquidity and where debt is less and repayment is and talk about the investment decision. So if we consider investing in Coral company, there is high level of financial risk. When reviewing the ratio movements, candidate should consider impact of foreign currency gain. For example, when comparing operating profit margin for Coral company and Reef company, it appears that Coral company is outperforming Reef company using ratio calculated in part. However, it would be appropriate to comment further on the effect that the gain and to recognize likely to be one-off transaction. Many did not utilize this point. अब भाई क्या करोगे यार? ये तो repetitive point है। तुम 2 कंपनियों को कंपेयर कर रहे हो, कभी रिवैल्यूएशन मॉडल, कॉस्ट मॉडल पे बात नहीं करते हो, अकाउंटिंग पॉलिसी पे बात नहीं करते हो, रीस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट, वन ऑफ आइटम, फॉरेन करेंसी गेन कोई रेकरिंग आइटम थोड़ी है। एक कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, एक का गेन ज़्यादा आ रहा है वन ऑफ ट्रांज़ैक्शन की वजह से, तो वो बात लिखोगे ना। कि तुम्हारी इस साल लॉटरी लग गई।
लॉटरी लगने की वजह से तुम्हारे पास काफ़ी पैसा आ गया। ये बात बताओगे ना कि वो पैसा लॉटरी से आया है, अगले साल नहीं होगा, वो परमानेंट मान लोगे। तो वन ऑफ की बात करो, ज़िक्र करो चीज़ों का। देखो 2 पॉइंट सिखा दिए आपको एग्ज़ामिनर ने। इसमें भी तो रट्टा है, अगर चीज़ें समझ आ जाए कि वन ऑफ है तो वन ऑफ का ज़िक्र करना है। लोन के रिलेटेड रीपेमेंट की बात है तो वो देखनी है, लोन से रिलेटेड एक्सपेंशन की बात है, ग्रोथ की बात है, एक्विजिशन की बात है तो उसकी बात करनी है। The requirement specifically asks candidate to explain whether Aqua would exert control over its investment. Many candidates ignore this completely in their analysis. अरे भाई, इतना कंसोलिडेशन पढ़ रहा है और रेशो में चेक कर रहा है कि एक्वा क्या कंट्रोल होगा, तो बात क्यों नहीं करते हो? एग्जामिनर कैसे दुख में बोल रहा है भाई। कह रहा है कि मैंने क्वेश्चन में डाला था कि कंट्रोल के ऊपर बात करना, बट हर बच्चे ने मुझे इग्नोर कर दिया। समझ रहे हो? जैसे इग्नोर करोगे, जैसे पेरेंट्स की बात अपन इग्नोर कर देते हैं कई बार। पेरेंट्स बहुत बुरा लगता है पेरेंट्स को, वैसे ही इनको बुरा लग रहा है। आपने इन्होंने कहा कि यार क्या इसको कंट्रोल दिखाया जा सकता है? अरे बताओ भाई, सब्सिडियरी 50% से ज़्यादा है तो कंट्रोल होगा, वरना एसोसिएट हो जाएगा, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है तो एज़ अ एसोसिएट अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। कहाँ है? कहाँ है? Many candidates ignore this completely in their analysis when there are specific requirement in addition to the usual performance and position of analysis. It is recommended the candidate get a specific heading. This will encourage candidate to consider this part as overall analysis. अरे भाई, स्पेसिफिकली कह रहा मैं इसके मार्क्स देता आपको क्योंकि मैंने बात करी थी, बट आपने हमारा दिल तोड़ के चल दिए आगे। फाइनली दिस रिक्वायरमेंट आस्क्स कैंडिडेट टू कंक्लूड व्हिच कंपनी टू इन्वेस्ट। अच्छा, ये भी बताना था, कंक्लूजन देना था। डिड प्रोवाइड अ ब्रीफ कंक्लूजन हु शुड इन्वेस्ट इन व्हिच शोड दैट एलिमेंट ऑफ रिक्वायरमेंट वाज अंडरस्टूड। कहता है ये सबने दिया। आवर कैंडिडेट स्टेट कोरल कंपनी और रिव कंपनी वुड बी गुड इन्वेस्टमेंट वर नॉट अवॉर्डेड फुल मार्क्स फॉर देयर कंक्लूजन। कैंडिडेट आर एनकरेज्ड एज अ सेपरेट हेडिंग फॉर अ कंक्लूजन। भाई, कंक्लूजन हमेशा सेपरेट हेडिंग बना के दो। बस सीधा ये मत बोलो कि कौन सी कंपनी अच्छी है, एक्सप्लेन करो व्हाई यू हैव कंक्लूडेड दिस, गिव ओवरऑल समरी ऑफ योर एनालिसिस, व्हाई यू हैव कंक्लूडेड। मेरे ख्याल से तो यार ऐसा कोई बात ही नहीं बचती, इतनी अच्छी रिपोर्ट है, मतलब दे हैव गिवन यू क्लियरली कि यार क्या सोचना है, कैसे लिखना है। कितना ही आप क्वेश्चंस देखो यूट्यूब पे भाई, 50-60 क्वेश्चंस सब देख लो। जब तक ये चीज़ें फिट नहीं करोगे ना दिमाग में, खुद से ड्राइव करोगे नहीं, खुद से स्विमिंग करोगे नहीं, ये बैठेगी नहीं। और इसलिए एग्ज़ाम रिपोर्ट में मैंने स्पेसिफिकली आपके साथ ज़्यादा टाइम लगा दिया इस रिपोर्ट में, बट जस्ट टू एन्श्योर कि आप ये गलतियाँ एग्ज़ाम में ना करो। बाकी इस वाले क्वेश्चन पे नहीं लगा रहा हूँ टाइम, ये कंसोलिडेशन का क्वेश्चन है। वो ये भी अगर अभी तक स्ट्रॉन्ग नहीं है तो फिर क्या है? तो ध्यान रखो, छोटी-छोटी चीज़ें हैं, डिस्ट्रीब्यूशन, ओनर और पेरेंट, ठीक है, कुछ मुझे ख़ास बताना नहीं है। डेफर्ड कंसीडरेशन, अच्छा, तो डेफर्ड कंसीडरेशन के भी कॉमन फ्रीक्वेंट से पॉइंट है, कई बार रिकॉर्डेड नहीं होती तो आपको रिकॉर्ड करना है, ध्यान रखना है। डेफर्ड कंसीडरेशन को किस पे रिकॉर्ड करोगे? प्रेज़ेंट वैल्यू पे। तो वो प्रेज़ेंट वैल्यू पे रिकॉर्ड करोगे, फिर उस पे इंटरेस्ट लगाओगे, अनवाइंड करोगे, तो वो छोटी-मोटी मिस्टेक बच्चों ने करी है इसमें। और क्या है, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट ऑफ फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट। तो कोई भी आपकी फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट नोट वाज फर्स्टली कैलकुलेटेड गुडविल कैलकुलेशन टू फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट्स। तो फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट्स आपको पता ही है, स्टेप 2 में हम एडजस्ट करते हैं, एसेट ऊपर नीचे होता है तो उसको रिकॉर्ड करो, उसका डेप्रिसिएशन कुछ है तो वो भी आपको टाइम अपोर्शन करके रिकॉर्ड करना है। कॉस्ट ऑफ सेल्स, इंट्रा ग्रुप ट्रांसफर्स को कैसे ट्रीट करते हैं, ठीक है, हम हटा देंगे सारे के सारे इंट्रा ग्रुप अनलाइज प्रॉफिट को। पीएनएल का क्वेश्चन लग रहा है, इंट्रा ग्रुप डिविडेंड को हटा देंगे, बट ध्यान रखना पेरेंट सिर्फ अपना शेयर हटाएगा 80%, ये एक खास बात ध्यान रखना, पूरा डिविडेंड मत हटा देना। सो दिस इज लास्ट पार्ट, आई थिंक यही पार्ट थोड़ा बहुत बचा पाया होगा बच्चों को। लेवल तो अच्छा खासा टेस्ट किया है कंसेप्चुअल लेवल पे भी। सेक्शन ए में भी मुझे क्वेश्चंस बहुत अच्छे लगे, और सेक्शन बी में तो चलो एक दो क्वेश्चंस ये डालते ही हैं थ्योरी, तो लीज को लेके कुछ ना कुछ घुमाते रहते हैं, बट दिस इज रिपीटेटिव। अगर 4-5 एग्जाम रिपोर्ट में हर बार बोलता हूँ करके जाओ, तो यू नो कि क्या कुछ रिपीटेटिव मार्क्स है, 2-4 मार्क्स क्रिएट अ ह्यूज डिफरेंस। बाकी नाउ व्हाट टू डू इन लास्ट 10-15 डेज बच्चों, तो वही अपने कुछ पॉइंटर्स दे जाता हूँ जाते जाते बच्चों को। बच्चे बहुत पूछते हैं सर क्या करें, अब क्या करें, सिलेबस हो गया, किट हो गया।
पहली चीज़ बच्चा एग्ज़ामिनर रिपोर्ट, ठीक है? 5-6 तो एग्ज़ामिनर रिपोर्ट पढ़ डालो, जैसे मैंने ये पढ़ाया इसको इसी तरीके से आप लोग एग्ज़ामिनर रिपोर्ट को पढ़ो डिटेल में। दूसरा, नॉर्मल पेपर-वेपर पे प्रैक्टिस बंद करो, सिर्फ़ प्रैक्टिस प्लेटफ़ॉर्म पे प्रैक्टिस करो। अगर प्रैक्टिस प्लेटफ़ॉर्म को यूज़ करना नहीं आता है, तो उसपे भी सेपरेट वीडियो मैंने बना रखा है। क्या है प्रैक्टिस प्लेटफ़ॉर्म उसको देखो। प्रैक्टिस प्लेटफ़ॉर्म पे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, वो भी मैंने सॉल्यूशन डाल रखा है। सिंगल एंटिटी का हो, कंसोलिडेशन का हो, रेशो का हो, कोई भी क्वेश्चन है आप बिल्कुल प्रैक्टिस कर सकते हो। 1-2 क्वेश्चन भी देख लोगे तो वो सब सिमिलर पैटर्न पे वर्क करते हैं। तो नाउ प्रैक्टिस ओनली ऑन प्रैक्टिस प्लेटफ़ॉर्म। प्री मॉक बिल्कुल टाइम्ड कंडीशन में बच्चों प्री-मॉक देना है। कब देना है? जब यू आर डन विद योर सिलेबस एंड यू हैव डन एट लीस्ट 1 और 2 मॉक्स योरसेल्फ एट योर होम्ड कंडीशन, मतलब एक जो होता है ना अपन टाइम पास के लिए जो मॉक देते हैं वो दे देना। प्री-मॉक को टाइम पास के लिए मत देना। यू हैव मोर मॉक्स इन प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म, उन्हें भी प्रैक्टिस करो, बट प्री मॉक ऐसे दो जैसे एग्जाम के लिए, एग्जाम कंडीशन में 3 घंटे बैठ के बच्चे क्या करते हैं, 2 घंटे दिया उठ गए, या सेक्शन सी को पढ़ लिया, मोटा मोटा आंसर खोल लिया, मार्किंग देख लो। नहीं, उस तरीके से नहीं, पूरा टाइम कंडीशन में बच्चों प्लीज प्री मॉक को दो। इट विल क्रिएट ह्यूज डिफरेंस। आपको टाइम मैनेजमेंट सिखाएगा, सबसे इंपॉर्टेंट टाइम मैनेजमेंट का पता लग जाएगा, मेरा टाइम कितना कितना लग रहा है। वो पता नहीं लगता, बच्चा पहली बार एग्जाम में जाके ही पता लगता है। तो कम से कम 3-4 मॉक एटलीस्ट आप दो, ताकि आपको वो चीजें समझ आ जाए कि यार मैं कहाँ पे लैग कर रहा हूँ। स्टडी हब, अगर स्टडी हब नहीं किया है, होपफुली करा होगा, बट स्टडी हब नहीं किया तो सेक्शन ए बी प्लीज कर लो, सी ना करो चलेगा, सी तो प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म से हो जाता है। ए बी बड़े कंसेप्चुअल लेवल के अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चंस होते हैं प्रैक्टिस में, स्टडी हब में, उस पर प्रैक्टिस करो। और जो भी आपका वीक एरिया है, मतलब आपको लगता है कि मैं कंसेप्चुअली वीक हूँ किन किन कंसेप्ट में, तो उनको कंसेप्चुअली स्ट्रॉन्ग करो। कंसेप्चुअल स्ट्रॉन्ग करने का तरीका यही है, रिपीटेटिव रिपीटेटिव, बार बार बार। ये कुछ 4-5 चीजें बच्चों आपको ध्यान रखनी है इन लास्ट 10-15 डेज में। focus on examiner reports. Secondly, important is your practice platform. Use practice platform जितना हो सके. Pre-mocks, mocks को दो. And finally, study hub से practice करो. And whatever area you have identified as a weak area, kindly check out that area. Try to make it stronger. You cannot leave anything. And repeat this cycle again and again. Once you do all these things again and again, you will definitely going to improve. एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार नहीं, 5 बार नहीं, इम्प्रूवमेंट आएगा आएगा। ठीक है? तो बेस्ट विशेस दोस्तों, अच्छा करके आओ एग्ज़ाम। बिल्कुल अ, घबराना नहीं, टेंशन नहीं लेना है, स्ट्रेस नहीं लेना है, एसीसीए बनना है। ठीक है ना? तो सब एसीसीए बनना चाहते हैं? तो कमेंट में कर दो, यस सर, आई वांट टू बी एसीसीए एंड आई विल डू माय बेस्ट। ठीक है? तो बेस्ट विशेस ऑल ऑफ यू। टेक केयर। मिलते हैं फिर। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।